बात देते हुए हम उसके सानिध्य में जाएंगे। जिस परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें नया दिन दिखाया है, उस परमेश्वर को स्तुति और महिमा और सम्मान करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, इस दिन को आपने हमें दिखाया, हमारी आंखें प्रभु परमेश्वर तूने खोली और आज का सूरज देखने के लिए सहायता की प्रभु जी। और एक अच्छा दिन आपने हमें दिया और एक दिन के हम सब मिलकर तेरी स्तुति और आराधना भक्ति करें। और परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ, पूरा हफ्ता आपने हम तब सबका संभाला और प्रभु हमारे संग रहकर हमारी अगुवाई की, हमारे कमियों में, हमारे सारे प्रभु चीजों में आप हमारे संग रहकर हमारी अगुवाई की, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और उपकार को प्रभु स्मरण करता हूँ कि प्रभु परमेश्वर हमारा सबों का बाहर जाना, अंदर आना, आशीषित किया पारिवारिक जीवन में प्रभु परमेश्वर तूने हमारी अगुवाई की, हम सबको हर प्रकार की आपत्ति विपत्ति से, दुर्घटना से संभाला, हर एक जरूरत प्रभु पूरी की, हर एक सुख दुख में प्रभु तूने संभाला, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक परिवार, हर एक भाई बहन प्रभु, हर एक बुजुर्ग प्रभु जी, हर एक को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। उद्धार में से कलीसिया से जुड़े हर एक परिवार को प्रभु मैं तेरे कदमों पर रखता हूँ और प्रभु तेरा आशीर्वाद उन पर प्रभु मांगता हूँ। सारे लोग प्रभु तेरे नाम से आशीषित हो जाए और आज की प्रार्थना सभा पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक तू आशीषित करना। गाने की सभा चलाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सबों पर तेरा आशीष और अभिषेक रख दे प्रभु जी। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहे, हमारे सारे पाप अपराध गुनाहों की क्षमा कर। तेरे लोगों ने प्रभु जाने अनजाने में जो कोई पाप किया हो प्रभु जी, क्षमा कर, तेरे लहू से शुद्ध कर और हमारे इस प्रभु बलिदान को, स्तुति आराधना को स्वीकार कर प्रभु जी। और हालेलुया, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में सामर्थ्य से मंडराने दे, हर एक भाई बहन को आत्मिक शांति और समाधान मिले और तेरी सामर्थ्य से प्रभु तेरे लोग भर जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर, आमेन। ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக கடந்த நாட்கள் முழுவதும் கண்மணி போல காத்து இந்த வாரத்தின் நம்மளை இந்த பரிசுத்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ள வைத்த தேவனுக்கு, தேவாதி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். நாம் நிற்பதும் நிர்மூலம் ஆவதும் தேவ கிருபை. ஹல்லேலூயா. கடந்த நாட்கள் முழுவதும் ராஜா கண்ணின் மணி போல கோழி தன் குஞ்சுகளை காப்பது போல நம்மளை பாதுகாத்து வழிநடத்திய தேவாதி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை பாடுவோம். ஆமென், ஸ்தோத்திரம். எல்லோரும் ஹல்லேலூயா. தெரிந்த பாடல் ஹல்லேலூயா. சூலத்தின் ஆழத்திலிருந்து கைகளை தட்டி ஆரவாரமாக தேவ சமூகத்திலே நம்மளை நாமே தாழ்த்தி படிப்போம். முதலாவதாக விடுதலை கீதங்களில் 129வது பாடல், எல்லோரும் தெரிந்த பாடல், சாங் நம்பர் 129. அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம், இந்த கொரோனா நோயெல்லாம் அது சீக்கிரத்துல நீங்கி போகும். தேவனுடைய நாமத்தில் இந்த நாட்களில் மட்டுமாய் குறைந்து கொண்டு வருகிறது. அது சீக்கிரத்தில் தேவன் எல்லாவற்றையும் அகற்றி போடுவார். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எஸ் லார்ட். நன்றி, நன்றி, நன்றி. ஆமென். விடுதலின் கீதங்களில் 129வது பாடல், சாங் நம்பர் 129. ஆமென். இந்த லேசான உபத்திரவம் அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும். இந்த லேசான உபத்திரவம் சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே. சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம். உள்ளாத மனிதன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகின்ற நேரம் இது. உள்ளாத மனிதன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகின்ற நேரம் இது. சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து
சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே. காண்கின்ற உலகம் தேடவில்லை, காணாத பரலோகம் நாடுகிறோம். சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே. கிறிஸ்துவின் பொருட்டு நெருக்கப்பட்டார், பாக்கியம் நமக்கு பாக்கியமே. சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே. மன்னவனேசு வருகையிலே மகிழ்ந்து நாமும் களி கூறுவோம். சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே. மகிமையின் தேவ ஆவிதாமே மன்னான நமக்குள் வாழ்கின்றார். சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே. அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம், அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரவம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, ஆமென். அதி சீக்கிரத்தில் கொரோனா நோயெல்லாம் அழிந்து போய்விடும். ஆமென். எஸ் லார்ட். நாம் விசுவாசிக்கணும். நாம் தேவ சமூகத்துல நாம் விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொன்றையும் தேவன் நடத்த வல்லவராயிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஆமென், ஜீசஸ். அடுத்தாவது ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். ஹல்லேலூயா. விடுதலையின் கீதங்களில் 106வது பாடல், சாங் நம்பர் 106. அழகானவர், அருமையானவர், இனிமையானவர். தேவன், நம் தேவன் அழகானவர், அருமையானவர், இனிமையானவர். ஆமென். ஹல்லேலூயா. எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் கையில தட்டி ஆரவாரமாக படிப்போம். ஆமென். எஸ் லார்ட் ஜீசஸ். அருமையானவர், இனிமையானவர், அழகானவர், அருமையானவர், இனிமையானவர், மகிமையானவர், மீட்பரானவர், மகிமையானவர், மீட்பரானவர். அவர் இயேசு, இயேசு, இயேசு. அவர் இயேசு, இயேசு, இயேசு. சேனைகளின் கர்த்தனாம் மகிமையின் ராஜா, என்னோடும் இம்மானுவேலன். சேனைகளின் கர்த்தனாம் மகிமையின் ராஜா, என்றும்
நம்மோடு இருக்கும் இம்மானுவேலே இம்மட்டும் இனிமேலும் எந்த நேசர் இம்மட்டும் இனிமேலும் எந்த நேசர் என்னுடையவர் என் ஆத்மநேசரே என்னுடையவர் என் ஆத்மநேசரே அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர் அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர் மகிமையானவர் மீட்பரானவர் அவர் இயேசு 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 கண்மலையும் கோட்டையும் துணையுமானவர் ஆற்றி தேற்றி காத்திடும் தாயுமானவர் கண்மலையும் கோட்டையும் துணையுமானவர் ஆற்றி தேற்றி காத்திடும் தாயுமானவர் என்றென்றும் நடத்திடும் எந்த ராஜா என்றென்றும் நடத்திடும் எந்த ராஜா என்னுடையவர் என் நேசகர்த்தரே என்னுடையவர் என் நேசகர்த்தரே அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர் அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர் மகிமையானவர் மீட்பரானவர் மகிமையானவர் மீட்பரானவர் அவர் இயேசு 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 கல்வாரி மேட்டிலே கல்கதாவிலே ரத்தம் சிந்தியே என்னை மீட்டார் கல்வாரி மேட்டிலே கல்கதாவிலே ரத்தம் சிந்தியே என்னை மீட்டார் பாசத்தின் எல்லைதான் இயேசு ராஜா பாசத்தின் எல்லைதான் இயேசு ராஜா என்னுடையவர் என் நேசகர்த்தரே என்னுடையவர் என் நேசகர்த்தரே அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர் அழகானவர் Yes, Lord, amen. Yes, Lord, hallelujah. கல்வாரி மேட்டிலே கல்கதாவிலே ரத்தம் சிந்தியே என்னை மீட்டார் கல்வாரி மேட்டிலே கல்கதாவிலே ரத்தம் சிந்தியே என்னை மீட்டார் பாசத்தின் எல்லைதான் இயேசு ராஜா பாசத்தின் எல்லைதான் இயேசு ராஜா என்னுடையவர் என் நேசகர்த்தரே என்னுடையவர் என் நேசகர்த்தரே அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர் அழகானவர் அருமையானவர் இனிமையானவர் மகிமையானவர் மீட்பரானவர் மகிமையானவர் மீட்பரானவர் அவர் இயேசு 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 அவர் இயேசு 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 அழகானவர்
அழகானவர், அருமையானவர், இனிமையானவர். அழகானவர், அருமையானவர், இனிமையானவர். மகிமையானவர், என் மீட்பரானவர். மகிமையானவர், என் மீட்பரானவர். அவர் இயேசு, இயேசு, இயேசு. அவர் இயேசு, இயேசு, இயேசு. Yes Lord, hallelujah. ரிஷபாதாரன சம்பூர்ணிக்க சதலபர ஹalleluya. நன்றி ராஜா, நன்றியோடு துதிக்கிறோம், சோத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. Yes Lord, நன்றி நன்றி ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா. ஹalleluya. Yes Lord, yes Lord, hallelujah. ஐயா, கடைசியாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல், விடுதலை கீதல 131வது பாடல். உமக்காக தானே ஐயா உயிர் வாழ்கிறேன், ஒளி வாழ்கிறேன் ஐயா. ஆமே. நம் தேவனுக்காக ஹல்லேலூயா, தேவ சமூகத்திலே தேவனுக்காக ராஜா ஹல்லேலூயா போற்றி துதிப்போம். உமக்காக தானே ஐயா உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. கருத்துள்ள பாடல், ஃபாதருடைய பாடல், கருத்துள்ள பாடல். ஹல்லேலூயா. எஸ் லார்ட் ஜீசஸ். உமக்காக தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காக தானே ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காக தானே ஐயா. கோதுமை மணி போல் மடிந்திடுவேன், உமக்காய் தினமும் பலன் கொடுத்தேன். கோதுமை மணி போல் மடிந்திடுவேன், உமக்காய் தினமும் பலன் கொடுத்தேன். அவமானம் நிந்தை சிலுவைதனை, அவமானம் நிந்தை சிலுவைதனை அனுதினம் சுமக்கின்றேன். உமக்காக தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காக தானே ஐயா. Yes Lord, amen. ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா. எனது ஜீவனை மதிக்கவில்லை, ஒரு பொருட்டாய் நான் கணிக்கவில்லை. Yes Lord. ஒரு பொருட்டாய் நான் கணிக்கவில்லை. எல்லோருக்கும் நான் எல்லாமானேன், எல்லோருக்கும் நான் எல்லாமானேன். அனைவருக்கும் நான் அடிமையானேன், அனைவருக்கும் நான் அடிமையானேன். உமக்காக தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளவெல்லாம் அன்பர் உமக்காக தானே ஐயா. Yes Lord, amen. Yes Master, நன்றி ராஜா. எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் எதுவும் என்னை அசைப்பதில்லை. எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும்
ஒருபோதும் என்னை அசைப்பதில்லை, மகிழ்வுடன் தொடர்ந்து ஓடுகிறேன், என் மகிழ்வுடன் தொடர்ந்து ஓடுகிறேன். மன நிறைவோடு பணி செய்வேன். Yes, Lord. Amen. பணி செய்வேன். உமக்காக தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா, இந்த உடலும் உள்ளவெல்லாம் அன்பர் உமக்காக தானே. தானே ஐயா, Yes, இந்த Lord. உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காக தானே ஐயா. பயன்படுத்தும் உம் சித்தம் போல, பயன்படுத்தும் உம் விருப்பம் போல, பயன்படுத்தும் சிரம் போல, பயன்படுத்தும் விருப்பம் போல, உம் கரத்தில் நான் கொள்ளாங்குழல், ஒவ்வொரு நாள் புல்லாங்குழல், ஒவ்வொரு நாளும் இசைத்திடுமே, ஒவ்வொரு நாளும் இசைத்திடுமே, உமக்காக தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா, இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காக தானே ஐயா. இந்த Amen. Yes, Lord. உமக்காக தானே ஆண்டவரே. Hallelujah. எங்க உடலும் உள்ளமும். Yes, Lord. Hallelujah. எனது பேச்செல்லாம் உமக்காக, எனது செயல் எல்லாம் உமக்காக, எனது Hallelujah. Amen. என் உடலும் உயிரெல்லாம் உமக்காக ஆண்டவரே. உமக்காக எழுந்தாலும் Yes, Lord. Amen. அமர்ந்தாலும் படுத்தாலும் உமக்காக. Amen. Yes, Lord. உமக்காக தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா, இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காக தானே ஐயா, இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காக தானே ஐயா. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. உமக்காக தானே ஐயா எங்கள் உடலும் உள்ளமும் உயிரும் உமக்காக தானே ஆண்டவரே. Hallelujah. எங்களை தாழ்த்துகிற ஆண்டவரே. Hallelujah. கண்மணி போல காத்து வழிநடத்துகிறவரே உமக்கு நன்றி ராஜா. Hallelujah. உம சித்தம் இல்லைன்றா ராஜா ஒரு நொடி கூட எங்களால் வாழ முடியாது ஆண்டவரே. Hallelujah. உலகத்திலே எத்தனையோ காரியங்கள் ராஜா. Hallelujah. நேத்து பார்த்த பிள்ளைகளை பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, எத்தனையோ நோய் நொடிகள் உலகத்திலே ராஜா. Hallelujah. இருந்த போது ராஜா எங்க சபை பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கண்மணி போல காத்து ஹல்லேலூயா இம்மட்டுமா வழி நடத்துகிறீரே, அதற்காக நன்றி ராஜா. பரிசுத்த ஆராதனை உங்க பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்ததுக்காக நன்றி ராஜா. மீதியான நேரத்தை பரிசுத்த கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிற ஆண்டவரே, எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ராஜா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம், சோத்திரிக்க ஆண்டவரே. எல்லாவற்றையும் பரிசுத்த கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிற ராஜா. நீரே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, பாதுகாத்து வழி நடத்துங்க, தேவைகளை சந்திங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தை வேண்டி கேட்க நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். Jesus. Praise God. Hallelujah. हम हिंदी गीत में जाएंगे और नंबर
पुराने बुक में गीत नंबर 221, मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे-अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। गाएंगे हम सब लोग पुराना पुस्तक सॉन्ग नंबर 221, 221। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे-अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे-अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। भीड़ थी 5,000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया भीड़ को खिला। भीड़ थी 5,000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया भीड़ को खिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। 4 दिन का बरबन आते उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था बिल्कुल विश्वास। जैसे यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकल आए, यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन का बरबन आते उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था बिल्कुल विश्वास। जैसे यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकल आए, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। भक्ति में था भिखारी, अंधा और कालाचारी, उसने यीशु को आते सुना। वह जोर से पुकारा, यीशु को आई दया, अल्लाह भारती में देखने लगा। भक्ति में था भिखारी, अंधा और कालाचारी, उसने यीशु को आते सुना। वह जोर से पुकारा, यीशु को आई दया, अल्लाह भारती में देखने लगा। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। 4 दिन का बरबन आते उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था बिल्कुल विश्वास। जैसे यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकल आया, उसने दिया लाजर को जिला। 4 दिन का बरबन आते उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था बिल्कुल विश्वास। जैसे यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकल आया, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। भक्ति में था भिखारी, अंधा और कालाचारी, उसने यीशु को आते सुना। वह जोर से पुकारा, यीशु को आई दया, अल्लाह भारती में देखने लगा। भक्ति में था भिखारी, अंधा और कालाचारी,
हमारी उसने यीशु को आके सुना। जोर से पुकारा यीशु को आई दया, हंसा मारती मैं देखने लगा। जय जयकार जय जयकार यीशु के लिए, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु के लिए, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु के लिए, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु के लिए, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु के लिए, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु के लिए, 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 जय जयकार। हम आराधना में जाएंगे और एक गीत को गाएंगे। न्यू सॉन्ग बुक, सॉन्ग नंबर 55, सॉन्ग नंबर 55। ये कुछ साल पहले स्मिता ने लिखा हुआ गाना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो हम गाएंगे। हमारे साथ आप गाने की कोशिश कर सकते हैं। तू ही तो है, तू ही तो है मेरे दिल की चाहत यीशु, तू ही तो है मेरे जीने की ताकत यीशु। न्यू सॉन्ग बुक, सॉन्ग नंबर 55। तू ही तो है, तू ही तो है मेरे दिल की चाहत यीशु, तू ही तो है, तू ही तो है मेरे जीने की ताकत यीशु, तू ही तो है, तू ही तो है मेरे दिल की चाहत यीशु, तू ही तो है, तू ही तो है मेरे जीने की ताकत यीशु। तेरी सेवा करनी है, तेरी महिमा करनी है, तेरी सेवा, तेरी सेवा करनी है, तेरी महिमा करनी है, बस अब तेरे लिए जीना है, बस अब तेरे लिए जीना है। सब खो दिया, खो दिया, कुछ पाया ना इस दुनिया में मैंने यीशु, तुझे पा लिया, पा लिया, सब मिल गया, मिल जीने की एक आरज़ू, सब खो दिया, कुछ पाया ना इस दुनिया में मैंने यीशु पा लिया, यीशु को पा लिया, सब मिल गया। यस माय गॉड, जीने की एक आरज़ू, तेरी सेवा करनी है, तेरी महिमा करनी है, तेरी सेवा करनी है, तेरी महिमा करनी है, बस अब तेरे लिए जीना है, बस अब तेरे लिए जीना है। मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी आशिकी, तू ही है मेरी
हर खुशी हमदम मेरी संग तू रहे हे यीशु मेरे हमनशी मेरी जिंदगी मेरी आशिकी तू ही है मेरी हर खुशी हमदम मेरे संग तू रहे हे यीशु मेरे हमनशी तेरी सेवा करनी है तेरी महिमा करनी है तेरी सेवा करनी है तेरी महिमा करनी है बस अब तेरे लिए जीना है बस अब तेरे लिए जीना है सबको दिया कुछ पाया ना इस दुनिया में मैंने यीशु कुछ पा लिया सब मिल गया मिल जीने की एक आरज़ू सबको दिया कुछ पाया ना इस दुनिया में मैंने यीशु कुछ खा लिया सब मिल गया मिल जीने की एक आरज़ू तेरी सेवा करनी है तेरी महिमा करनी है बस तेरी सेवा करनी है तेरी महिमा करनी है बस अब तेरे लिए जीना है बस अब तेरे लिए जीना है बस अब तेरे लिए जीना है बस अपने लिए जीना है सब खो दिया कुछ पाया ना इस दुनिया में मैंने यीशु तुझे पा लिया हमें सब मिल गया और एक जीने की नई उम्मीद एक आरज़ू मिल गए हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन इस दुनिया में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमने सब कुछ खो दिया था हमारे पास यीशु मसीह नहीं था हमारा उद्धार नहीं हुआ था हम अपने परमेश्वर से दूर थे लेकिन जिस दिन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आया हमने सब कुछ पा लिया हमने नया जीवन पा लिया हमने स्वर्ग पा लिया हमने स्वर्ग की आशीषें पा ली प्यारे भाई और बहनों और हमें एक जीने की नई उम्मीद एक आरज़ू मिल गई कितना सच है प्यारे भाई और बहनों यीशु ने कहा था मनुष्य ने सारी दुनिया को कमा लिया लेकिन अपनी आत्मा को खो दिया तो क्या लाभ होगा सचमुच इस दुनिया में जब यीशु मसीह से दूर थे तब हमने बहुत कुछ पाया था लेकिन सब कुछ खोया था हालेलुया सब कुछ पाने के बावजूद हमने सब कुछ खोया था लेकिन क्योंकि इस दुनिया की कोई भी संपत्ति या दुनिया की कोई भी चीजें हमें परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकती थी हालेलुया लेकिन जब से यीशु मसीह आया हमारा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया हमें अपना संतान बनाया धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर को स्तुति और महिमा करते हैं मेरे जीवन का मकसद तू है मेरे जीने की ताकत तू है मेरे जीवन का मकसद तू है सॉन्ग नंबर 216 पुराने बुक में सॉन्ग नंबर 216 मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए है तू मेरा प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू है मेरे जीने
के कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल गए, मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, ओ पिछला सब भूल गए, मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, मैं पाऊं उसके पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उसके पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने की ताकत तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं, देखो तेरी सलीब झुकता मैं चाहूं, देखो तेरी पीछा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। पिछला सब कुछ आगे मैं दौड़ा चलूं। थैंक यू जीसस। तो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। हाँ मेरे प्यारे भाई,
पिछले जीवन में जो कुछ हुआ था, बाइबल कहते, पौलुस कहते कि मैं उसे भूलकर आगे की ओर दौड़ता हूँ। इस दुनिया का धन को छोड़कर मैं उस धन की ओर दौड़ता हूँ, ताकि उस स्वर्गीय धन को मैं पा सकूं। यही इस गाने का मतलब है प्यारे भाई। और हम पर जो कृपा हुई है, अनुग्रह हुआ है, उस अनुग्रह को हम व्यर्थ न जाने दें, उसको हम खो न दें, लेकिन उस परमेश्वर पर जिसने चुना है उसकी ओर हम बढ़े। हालेलुया। उस परमेश्वर की ओर हम बढ़े इन दिनों में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और एक गीत को गाएंगे, ओ तेरी स्तुति आराधना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Come on everybody. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. करुणा से तू नया दिन दिखाता है, हाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। Come on everybody, सब लोग गाएंगे ऊंचे स्वर में। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखो बस तेरी सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
है तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दे तेरी पवित्र उपस्थिति, स्तुति और महिमा और सम्मान। आमीन। Psalm 81, भजन संहिता 81। Psalm 81। मैं रीड शुरू करता हूं, आप मेरे साथ। Psalm 81। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। தம்புரு வாசித்து வீணையையும் இனிய ஓசையான சுரமண்டலத்தையும் எடுத்து சங்கீதம் பாடுங்கள்। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूंको। இது இஸ்ரவேலுக்கு பிரமாணமும் யாக்கோபின் தேவன் விதித்த நியாயமுமாய் இருக்கிறது। उसको उसने यूसुफ में चुनौती की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। அவன் தோலை சுமைக்கு விலக்கினேன், அவன் கைகள் கூடைக்கு நீங்களாக்கப்பட்டது। तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया, बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। என் ஜனமே கேள், உனக்கு சாட்சியிட்டு சொல்லுவேன், இஸ்ரவேலே நீ எனக்கு செவி கொடுத்தால் நலமாயிருக்கும்। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तो किसी पराये देवता को दंडवत करना। உன்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே, உன் வாயை விரிவாக்குகிற நான் அதை நிரப்புவேன்। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। ஆகையால் அவர்களை அவர்கள் இருதயத்தின் கடினத்திற்கு விட்டுவிடேன், தங்கள் யோசனையின்படியே நடந்தார்கள்। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्ग पर चले, நான் சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எதிராளிகளை தாழ்த்தி என் கையை அவர்கள் சத்துருகளுக்கு விரோதமாக திருப்புவேன்। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदा कल तक बना रहता है। साथ में पढ़ेंगे, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान के से मधु के से उनको तृप्त करता। आमेन। प्रेज़ गॉड। क्या लिखा है यहाँ? यदि मेरी प्रजा सुने, यदि मेरी प्रजा मार्ग पर चले, तो क्षण भर में उनके शत्रुओं को मैं दबाऊंगा, विद्रोह के प्रयोग के हाथ से छुड़ाऊंगा और बैरी को उसके वश में कर दूंगा और उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता रहूंगा और चट्टान के से उत्तम मधु को उनको तृप्त करूंगा। आमीन। गवाही का समय है। जिनके पास गवाही अपना हाथ ऊपर करे और गवाही दे दे। ओके, गो अहेड। कोई गवाही नहीं। Praise the Lord.
Praise God in His temple. Praise His strength in heaven. Psalm 150 verse 1. यहाँ हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। भजन संगीता 150 verse 1. I can do anything through Christ who give me strength. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Matthew 5 verse 3 and 4. I will answer thee, and you these great and mighty things which thee thou knowest not. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Proverbs 16:24. Okay. Praise God. प्रार्थना करेंगे और वचन में हम जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर एक परिस्थिति के लिए। प्रभु स्तुति आराधना में आपने हमारी अगुवाई की। इस समय प्रभु तेरे वचन से सुनने का समय है। जिस विषय पर प्रभु बात कर रहे हैं प्रभु, उस विषय के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को तो चला और तेरा वचन हमारे हृदय में प्रभु परमेश्वर वास करे और प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तेरे लोग और भी प्रभु परमेश्वर भर जाए और फल देने वाले बने और उपयोग के पात्र बने। प्रभु से जो वचन हम सुन रहे हैं कि प्रभु दिए हुए गिफ्ट्स को, वरदानों को इस्तेमाल करने के बारे में प्रभु परमेश्वर हम सबको जो वरदान तूने दिए हैं उस वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर, ताकि इस धरती पर हालेलुया हम तेरी महिमा करने वाले लोग बने और तेरे उपयोग के पात्र बने। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमेन। जाएंगे 1 Corinthians chapter 12। और हम लोग देख रहे थे कि वन बॉडी मेनी पार्ट्स या मेनी पार्ट्स वन बॉडी, कई अंग और एक शरीर और उनके कार्य। हमारा विषय है यूजिंग आवर टैलेंट्स, हमारे टैलेंट्स का, हमारे वरदानों का इस्तेमाल करने के बारे में। परमेश्वर ने हम सबको किसी न किसी वरदान को देकर चुना है, किसी न किसी काम के लिए रखा है। कोई न कोई कार्य प्रभु के लिए हमें करना है। हमारे हाथों का, पैरों का, दिमाग का, आंखों का, कानों का इस्तेमाल प्रभु के महिमा के लिए करना है। Praise the Lord. So इस विषय पर हम देख रहे हैं कि God has given us a beautiful body and God has given us many parts, okay, from our head to toe, okay, बहुत सारे अंग दिए हैं। और परमेश्वर का दास पौलुस बहुत सुंदर रीति से समझाता है कि कलीसिया में भी जैसे कि यीशु एक देह है हमारे लिए और हम यीशु के अंग हैं। We are hands and legs and हालेलुया डिफरेंट पार्ट्स, हालेलुया। और हमें उस इन चीजों को इस्तेमाल करना है। और हम पढ़ रहे थे 14 से लेकर हम पढ़ रहे थे आगे कि देह में
एक अंग नहीं परंतु बहुत से हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने देखा कि यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं तो इसके लिए मैं देह का नहीं होता, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं होता? So brother Wilson, read from verse 14 to 21. First read from 14 to 21. சரீரமும் ஒரே அவயவமாயிராமல் அநேக அவயவங்களாயிருக்கிறது. காலானது நான் கையாயிராதபடியினாலே தான் சரீரத்தின் அவயமல்லவென்றால் அதனாலே அது சரீரத்தின் அவயவமாயிராதோ? காதானது நான் கண்ணாயிராதபடினாலே நான் சரீரத்தின் அவயமல்லவென்றால் அதனாலே அது சரீரத்தின் அவயமாயிராதோ? சரீரம் முழுவதும் கண்ணானால் செவி எங்கே? அது முழுவதும் செவியானால் மோப்பம் எங்கே? தேவன் தமது சித்தத்தின்படி அவயவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் சரீரத்திலே வைத்தார். அவையெல்லாம் ஒரே அவயவமாய் இருந்தால் சரீரம் எங்கே? அவயவங்கள் அநேகமாய் இருந்தும் சரீரம் ஒன்றே. கண்ணானது கையை பார்த்து நீ எனக்கு வேண்டுவதில்லை, தலையானது கால்களை நோக்கி நீங்கள் எனக்கு வேண்டுவதில்லை என்றும் சொல்லக்கூடாது. ஆமென். Amen. So यहाँ पौलुस हमें सिखा रहा है कि we all the members of church, हम लोग जो कलीसिया के सारे अंग हैं, लोग हैं, इन सबको एक दूसरे की जरूरत है। ओके, हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को एक दूसरे की जरूरत है। God has designed us not to remain alone, but to remain in unity. हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम लोग साथ में रहे, एक साथ मिलजुल कर रहे, यूनिटी में रहे। परमेश्वर ने हमें अलग अलग नहीं बनाया है। ये हाथ अलग नहीं है, ये हाथ अलग नहीं है, पैर अलग नहीं है, सिर अलग नहीं है। दिस वन बॉडी मेनी पार्ट्स, और वो एक ही इशारे पर काम करते हैं। दिमाग कहाँ जो सिर से उसे जिस तरह से सूचना दी जाती है वैसे ही ये शरीर काम करता है। और हमारा सिर है यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, और तुम और हम यीशु के अंग हैं। और जिस तरह यीशु हमें, प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा देता है, हमें चलने के लिए कहता है, वैसे ही तुम्हें और हमें चलना चाहिए। ये सीखने लायक है। पहले हम कोई भी हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कमजोर हो, परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल में कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर के सब कुलों में से अलग अलग लोगों को, छोटे बड़े धनी गरीब, सबको साथ मिलकर कलीसिया में लाकर रखा हुआ है। हालेलुया। और हमें सबको मिलकर साथ में लेकर चलना जरूरी है। तो मैंने कह सकता हूं कि मैं कान ना कह सकता कि मैं आंख नहीं हूं इसके लिए मैं देह का नहीं हूं। ओके, कोई नहीं कह सकता कि इसलिए कि मैं कलीसिया में कुछ नहीं हूं, मुझे कोई स्थान नहीं है इसलिए मैं कलीसिया में नहीं हूं। नहीं, each and every part, each and every brother and sister is important in the church. हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? कलीसिया में आया हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, कंगाल हो, कम पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो, परमेश्वर की नजर में हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वो चाहे तुम्हारे लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने चुन कर रखा है। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि ये मेरी भाषा बोलने वाला नहीं है, ये मराठी नहीं है, ये हिंदी वाला नहीं है, या तमिल वाला नहीं है, या गुजराती वाला नहीं है। ना ना ना, परमेश्वर ने सबों को साथ में मिलकर रहने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और this is the beauty of the church of God. दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग अन्य अन्य धर्मों से, अन्य भाषाओं से परमेश्वर ने चुनकर एक ही जगह पर रखे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो वैसे ही जैसे कि सारे रंग एक साथ जुड़ जाते हैं, इंद्रधनुष में एक साथ कई सारे कलर होते हैं लेकिन वो साथ में रहते हैं और शोभा देते हैं। हालेलुया। रेनबो, जिस तरह रेनबो आकाश में वो बहुत सारे कलर के साथ होता है लेकिन फिर भी वो एक होता है।
हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने काले गोरे कैसे भी जिसे भी परमेश्वर ने चुने हैं उनको कलीसिया में रखा है, और तुम नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उस भाई की जरूरत नहीं है। कुछ एक उदाहरण के तौर पर देता हूं मेरे भाई और बहन, उदाहरण देता हूं आपको। हमारे विक्रमगढ़ के कलीसिया में, सुनो मेरी बात, जरा गड़बड़ कोई कर रहे हैं, जरा सुमित जरा शांति से रहो, एक जगह हिलो मत। मुझे सब दिख रहा है, कोई इधर उधर मत देखो। आपका ध्यान वचन पर होना चाहिए। आधा घंटा आपका वचन पर ध्यान होना चाहिए। ओके, प्लीज रिमेन साइलेंट। ओके, विक्रमगढ़ के कलीसिया में एक 3 परिवार है, 3 परिवार, और इन 3 परिवारों ने बलवा किया। दे रिबेल्ड अगेंस्ट वन अनदर, अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर, दूसरों के खिलाफ में बलवा किया, और उनको कुछ आगे आकर कुछ काम करना था तो उनको अवसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनको उस चीज की बुलाहट नहीं है। जो काम करने के लिए उनको बुलाहट नहीं, वो काम वो करने जा रहे हैं। तो गए दिनों में उन्होंने मुझे फोन करके बताया, मुझे और स्मिता को फोन करके बुलाया कि हमें भी कुछ करना है, हमें कलीसिया में कुछ करने नहीं दिया जाता है, हमें भी कुछ करना है। तो मैं बोला, ब्रदर, समय आने पर आपको भी सेवा के लिए खड़ा किया जाएगा। समय आने पर आपको भी, जो भी आपको वरदान रहेगा, उस वरदान को इस्तेमाल करने के लिए आपको चुना जाएगा। तो उन्होंने कहा, हमने भी शिक्षा ली है, हमको चांस नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, हम अपने इसी कलीसिया में रहकर हम लोग हमारे घर में हमारा हाउस ग्रुप चलाएंगे। तो हमने कहा, ठीक है, आप हमारे साथ बना रहना चाहते, हमारे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अलग बनकर, यानी कि दूसरे घर में जाकर आप सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने शुरू में हमने सोचा कि इन तीनों को अगर जाना है तो जाने दो, लेकिन फिर बाद में ना परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। हम लोगों ने ऐसा एक विचार किया कि बाबा ठीक है, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तो तुम एक काम करो, तुम्हारे गांव में इस कलीसिया को बिना तोड़े तुम अपने गांव में, अपने घर में एक अलग प्रार्थना सभा शुरू करो और हमारे साथ रहो। तो गए 2 महीने से प्यारे भाई और बहनों, वो 3 परिवार मिलकर प्रार्थना चलाते हैं शांति के साथ, और कोई गड़बड़ नहीं है। उनको कुछ करना था, प्रभु में आगे बढ़ना था, तो उनको बढ़ने दिया। क्योंकि हमने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं, इनको बांध के रखे और इनको दबा के रखे। हमने कहा, ठीक है, जाओ, तुमको करना है। तो वो लोग करने लगे, और 2 महीने से अपने ही कलीसिया के लोग, उन्होंने दूसरी एक प्रार्थना सभा शुरू की और वो लोग चले गए, यानी कि अपने बीच में, लेकिन दूसरे गांव में चले गए। सो प्यारे भाई और बहनों, इस तरीके से हर एक अंग को हमारी जरूरत है। हम में से कोई नहीं कह सकता है कि मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं कहीं भी जाऊंगा तो मोबाइल पर प्रार्थना सुनूंगा, और मुझे किसी का अधीनता में रहने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को अकाउंट देने का, हिसाब देने का जरूरत नहीं है, और झंझट नहीं है, मैं अपना अलग से कोने में पढ़कर रहूंगा और बस। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कान कहे मैं आंख नहीं, इसके लिए मैं देह का नहीं हो, तो ऐसे इस कारण देह का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि सारी देह आंख होती तो सुनना कहाँ होता, यदि सारी देह कान होती तो सुनना कहाँ होता। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है, अपनी इच्छा के अनुसार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। See, you are in the church not by your will. Hallelujah. You are in this church not by your will but by God's will. अपने स्वर्गीय पिता के अनुसार, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है। Praise the Lord. So आप और हम नहीं कह सकते हैं कि मुझे उस परिवार की जरूरत नहीं है, वो परिवार ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, कई बार हमें दूसरों के बीच में बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते हैं कि इसलिए कि उनके अंदर कुछ दोष है, कुछ डिफेक्ट्स हैं, इसके लिए हम उनको नहीं चाहते हैं, उनका घृणा करें या फिर उनको हेट करें, उनको रिजेक्ट करें, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर ने उनको रखा हुआ है। हम उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर उनको बदल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कई दिनों में इन भाइयों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने सब कुछ ठीक कर दिया।
वो लोग, हम चाहते थे कि छोड़ के जाए तो चलेगा, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना इस दिन है, प्रभु कलीसिया का एक भी परिवार टूटना नहीं चाहिए, कलीसिया में कोई फूट नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही हुआ, कलीसिया में कोई फूट नहीं हुई, सारी कलीसिया के लोग एक मिलकर है, बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्यारे भाई और बहनों, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। हालेलुया। अभी आगे मैं बताऊंगा कि कलीसिया में हमें एक दूसरे का आदर भी करना है, बिना आदर कोई रह नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक एक देह को परमेश्वर ने, एक एक व्यक्ति को, भाई को परमेश्वर ने या बहन को अंदर रखा हुआ है, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे जैसे कि हमारे कलीसिया में कुछ उम्र की बहनें हैं, जैसे कि हमारी बहन कृपावती है या पापा जैम है, इन लोगों को रखा है, या राज की माँ है, ये लोग भी शोभायमान लोग हैं, दे आर आल्सो ब्यूटीफुल पीपल। हालेलुया। सो सबको परमेश्वर ने रखा है, भले वो हमारे जैसा काम नहीं करते, लेकिन दे आर ब्यूटीफुल, परमेश्वर ने उनको रखा हुआ है। उनकी प्रार्थना, उनकी दुआ, उनकी आशीष हमारे लिए काफी है। हालेलुया। जब ये लोग हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं तो हमारे लिए वो आशीष की बात होती है। सो ईच एंड एवरी ब्रदर एंड सिस्टर इज इंपॉर्टेंट। स्मॉल, एक छोटा बच्चा भी कलीसिया में बहुत शोभा देता है, हाँ कि नहीं? इस कलीसिया में बच्चे नहीं होते हैं, देखो ऐसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना? कलीसिया में बच्चे भी होते हैं, वो शोभा देते हैं। तो परमेश्वर ने उनको रखा हुआ है, हम नहीं कह सकते हैं कि उनको, उनकी हमें जरूरत नहीं है। भले हमें तकलीफ होती है, कई बार तकलीफ होती है, मुझे भी होती है तकलीफ, लेकिन फिर भी अरे भाई और बहनों, हमें सहनशीलता के साथ काम लेना है। ठीक है। सो यदि वे सब अंग एक ही अंग होते, यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? देखो, एक जस्ट कल्पना करो, तुम्हारा मेरा शरीर सिर्फ आंख ही होता, एक आंख, तो उनको कोई शोभा होती क्या? या फिर एक ही कान बहुत बड़ा होता, एक कान ही बहुत बड़ा होता, 2-4 फुट का, ऐसा दिखता था मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर। हालेलुया, कितना अजीब लगता था ना। या फिर तुम्हारी मेरी नाक बराबर एकदम शोभा देता हमारे चेहरे को, लेकिन वो समझो 2-3 फुट इतना लंबा होता नाक। ओके, ऐसा लगता था हमारा ये नाक, हमारा चेहरा। लेकिन परमेश्वर ने हमारा चेहरा, हमारे हाथ, समझो हमारे हाथ बराबर एक एक तरीके से है, एक समान है लंबाई में, लेकिन एक हाथ बहुत लंबा होता और एक छोटा होता, तो कैसा दिखता था? अजीब सा लगता था। सो वैसे ही परमेश्वर ने जैसे शरीर में ये अंग रखे हुए, समानता में रखे हुए हैं, वैसे ही परमेश्वर ने कलीसिया में तुम्हें और हमें रखा है। हम सबको मिलकर काम करना है। हालेलुया। हम सबको मिलकर हमारे टैलेंट्स को, हमारे वरदानों को इस्तेमाल करना है। इन हाथों का इस्तेमाल करना है, इस दिमाग का इस्तेमाल करना है, इस मुंह का इस्तेमाल करना है, कानों का वचन इस्तेमाल करना है, वचन सुनने के लिए, मुंह का इस्तेमाल करना है, प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए। हालेलुया। पैरों का इस्तेमाल करना है, सुसमाचार में जाने के लिए। हालेलुया। तो ये सब चीजों का इस्तेमाल हमें करना है परमेश्वर की महिमा के लिए, तब परमेश्वर को भी आनंद होगा। जिस परमेश्वर ने, कुम्हार ने इस मिट्टी को बनाया है, उस मिट्टी का इस्तेमाल जब परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, तो परमेश्वर भी इस मिट्टी के बर्तन पर आशीष देगा और वो शोभायमान होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसी तरीके से प्यारे भाई और बहनों, तुम्हें और हमें भी कलीसिया में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, जगह है। आंख 21 में देखते हैं, वर्स 21। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांव को कह सकता मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम में से कोई, हम में से कोई नहीं कह सकता है कि मुझे अमुक एक भाई की या बहन की जरूरत नहीं है। तुम में से कोई नहीं कह सकता कि मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, मुझे ब्रदरों की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी जरूरत भी है। हम सबको परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर ने हम सबको जोड़ दिया है। इसलिए कोई भी कभी ना कहे, चाहे वो भाई कैसा भी हो, वो बहन कैसी भी हो, उसमें कुछ कमियां हो, लेकिन अगर वो हमारे साथ चलता है, हमारे कलीसिया में है, तो परमेश्वर ने उसको रखा है। कुछ गड़बड़ है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें और उसके साथ रहें और उसको बदलाव लाने के लिए उसके साथ काम करें और प्रभु से विनती करें। इसलिए कभी हम ना कहें
कि मुझे उस भाई की जरूरत नहीं है, मुझे उस बहन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे परिवार में जब फूट होती है, तुम्हारे परिवार में जब फूट होती है, 5 भाइयों के बीच में झगड़े होते हैं और झगड़े के बीच में एक भाई कहता है चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, जब बीमारियां आती है, तकलीफ और परेशानी आती है, तो कई बार हमारे परिवार के पिछड़े हुए लोग भी हमारे काम में आते हैं। हालेलुया। तो वैसे ही परिवार के लोग हमें काम में आते हैं, ऐसे ही प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया में भी एक दूसरे की जरूरत है। तुम्हारी प्रार्थना की मुझे जरूरत है, मेरी प्रार्थना की तुम्हें जरूरत है। हालेलुया। और तुम्हें हर एक काम जो दिया गया है वो काम करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में जरूर मिलेगा। पढ़ते हैं 22 से लेकर 26 तक। रीड फ्रॉम 22 to 26 ब्रदर। சரீர அவயவங்களில் பலவீனம் உள்ளவைகளாய் காணப்படுகிறவர்களே மிகவும் வேண்டியவைகளாய் இருக்கிறது. மேலும் சரீர அவயவங்களில் கனவீனமாய் காணப்படுகிறவர்களுக்கு அதிக கனத்தை கொடுக்கிறோம். தம்மில் லட்சணம் இல்லாதவைகளே அதிக அலங்காரம் பெறும். நம்மில் லட்சணம் உள்ளவைகளுக்கு அலங்கரிப்பு வேண்டியதில்லை. சரீரத்திலே பிரிவினை உண்டாயிராமல் அவயவங்கள் ஒன்றை குறித்து ஒன்று கவலையாய் இருக்கும்படிக்கு தேவன் கனத்தில் குறைவுள்ளதற்கு அதிக கனத்தை கொடுத்து இப்படி சரீரத்தை அமைத்திருக்கிறார். ஆதலால் ஒரு அவயவம் பாடுபட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூட பாடுபடும். ஒரு அவயவம் மகிமைப்பட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூட சந்தோஷப்படும். நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே அவயவங்களுமாயும் இருக்கிறீர்கள். आमेन आमेन आमेन। प्रेज गॉड। चलो अब हम दुर्बल अंगों के बारे में सुनते हैं। द पार्ट्स विच आर वेरी वीक। तो परमेश्वर ने हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग रखे हैं जो हमें निर्बल लगते हैं। बाइबल कहती है देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने देखो हमारे दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और अपने शरीर के उन कमजोर अंगों के बारे में हम सोचेंगे कि हम उन कमजोर अंगों को काट कर फेंकते नहीं है। समझो जस्ट एक फॉर एग्जांपल, इस उंगली को तकलीफ होती है, ये उंगली को जख्म होती है, जख्म। ओके, तुम इस उंगली को काट कर फेंकते नहीं है ना। ओके, इस उंगली को तुम काट के फेंकते नहीं है, आप उसको उपाय करते हैं। ओके, एक आंख में कचरा जाता है, आंख में तकलीफ होती है, आंख से दिखाई नहीं देता है, किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, तो डॉक्टर के पास जाके नहीं बोलता है मरीज कि मेरी आंख से मुझे दिखती नहीं है, मेरी आंख को निकाल कर फेंक दो। कोई नहीं बोलता है। वो एक आंख के साथ उस कमजोर आंख को लेकर मरते दम तक जिंदा रहेगा, हाँ कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। मरते दम तक जिंदा रहेगा, लेकिन वो उसको संभालेगा क्योंकि वो उसके शरीर का अंग है। वैसे कलीसिया में कमजोर लोग होते हैं, निकम्मे लोग होते हैं, जो लोग कुछ काम के नहीं होते हैं, ऐसे भी लोग परमेश्वर ने रखे हुए हैं। ओके, तो उनको हम नहीं कह सकते उसको काट को फेंक दो, वो परमेश्वर का काम है। वो रखना नहीं रखना परमेश्वर तय करेगा, तुम और हम उसको नहीं निकाल सकते। प्रेज द लॉर्ड। सो प्यारे भाई और बहनों, we have to learn to give importance to the weaker people, weak people. We should God has kept them so that we may be able to love them, we may be able to take care of them. आखिर में तुम्हें प्रतिफल जो मिलना है वो किस चीज का प्रतिफल मिलेगा? तुम्हें और हमें जो स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा वो किस चीज के बारे में मिलेगा? कि तुम कलीसिया के कमजोर गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं उनके बारे में तुम सोचते हो और उनकी मदद करते हो, उनको तुम संभालते हो, तो तुम्हें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालांकि प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन दोनों तरफ से हमें सुनाई देता है। देखो, मंदिर में 2 लोग चले गए, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए 2 लोग चले गए। एक था शास्त्री जो जाकर वेदी के सामने खड़ा रहकर चिल्लाता है और कहता है मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं 2 बार 3 बार प्रार्थना करता हूँ, मैं गरीबों को दान धर्म करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। सुन रहे हो तुम लोग? ओके ओके, मेरी आवाज सुनाई देती ना? ओके, सो फिर दूसरा गया जो पापी व्यक्ति था, बाइबल कहते दूर खड़ा रह गया।
वो वेदी के पास भी नहीं गया, दूर खड़ा रहा और दूर से छाती पीट के कहता है, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और यीशु ने कहा वो पहला नहीं, ये दूसरा धर्मी ठहर कर घर पे चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर की नजर में एक पापी से भी पापी व्यक्ति भी कई बार परमेश्वर उसकी सहायता करता है अगर पश्चाताप करे तो। हाँ, इंपॉर्टेंट है कि अगर वो पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उससे प्रेम करता है। घमंडी लोगों से परमेश्वर इस तरीके से व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन पश्चातापी व्यक्ति वो कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन उसके पास अगर पश्चाताप का हृदय है, परमेश्वर उसके साथ रहने वाला है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास टूटा हृदय होता है, और टूटा दिल जहां होता है, वो कितना भी बड़ा पापी हो, कितने भी पाप उसने किए हो, परमेश्वर उसको सारे पापों की क्षमा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो इस प्रकार प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहती है कि जिन दुर्बल अंग लगते हैं परंतु बहुत ही आवश्यक हैं, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते। ब्रदर राज, तो सुमित को अनम्यूट करो, म्यूट सुमित को म्यूट करो, किसी का आवाज आ रहा है। ब्रदर सुमित डिस्टर्ब हो रहा है बहुत, आप एक जगह बैठो ना। ओके। अब कहते हैं कि देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं, हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग जो होते हैं और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे शरीर को ऐसे रखा हुआ है जैसे कि उसकी समान तौर पर उसके हम लोग देखभाल करते हैं। जिस अंगों को जरूरत नहीं होती है उसे भी हम अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, और हम अपने शरीर को समान अधिकार देते हैं और शरीर के उन अंगों का रिस्पेक्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वैसे ही हमें कलीसिया के कमजोर लोगों को भी हमारा अपना करना है। दुर्बलों की बाइबल कहते सहायता करो, दुर्बलों को अपनाओ, एक्सेप्ट देम, नॉट रिजेक्ट देम। ओके। सो इस तरीके से प्यारे भाई और बहनों, भले तुम्हारे मेरे बीच में कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे के साथ रहना है और शोभा देने का काम करना है। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु देह, परमेश्वर ने देह को ऐसे बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। ये परमेश्वर का कार्य है। मेरे भाई और बहनों, जिस तरह ये शरीर के बारे में परमेश्वर ने हमारी रचना की है, ऐसे परमेश्वर ने इस कलीसिया की रचना की है, और कलीसिया के सारे विश्वासियों को एक दूसरे को स्वीकार करना सीखना चाहिए। कोई भी भाई बहन एक दूसरे से कलीसिया से दूर रहकर सिर्फ संडे बिलीवर नहीं बन सकता, और अगर बनेंगे तो वो सहभागिता, वो फेलोशिप जो प्रभु ने बनाई है, वो फेलोशिप का कोई मतलब नहीं है। ओके, वो फेलोशिप का कोई मतलब नहीं है। आज ठीक है, अभी कलीसिया बंद है तो सहभागिता नहीं हो पा रही है, वो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जब कलीसिया शुरू की, तब भी बहुत सारे कलीसिया में लोग जो होते हैं वो अपने ही जीवन को जीते थे, किसी के साथ घुलते मिलते नहीं थे और किसी के साथ बात नहीं करते थे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में एकता होना जरूरी है। आज तक कई भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते। सॉरी टू से दिस, आज भी कई भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते। साल हो गए, कहीं एक बहन ने दूसरे भाई बहन से बात नहीं की कई बार। मेरे भाई और बहनों, ऐसा नहीं होता है आत्मिक जीवन, ऐसा नहीं होता है। आपको परमेश्वर ने अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया है,
आपको और हमको परमेश्वर ने साथ में मिलकर रहने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अब ये हम अंत के दिनों में खड़े हैं, एटलीस्ट अभी तो हम अपना हट छोड़ दे। ये हट करना, जिद करना, हृदय कठिन करना, क्षमा न करना, ये सारी बातें छोड़ दो। अब क्षमा करो एक दूसरे को, भाई भाई को क्षमा करो, बहन बहन क्षमा करो, जाओ एक दूसरे के घर पे मिलो, फोन करो, बातें करो, क्षमा करो, क्योंकि बाइबल कहते हैं जब तुम दूसरों के अपराधों की क्षमा नहीं करेंगे तो तुम्हें भी तुम्हारे अपराधों की क्षमा नहीं की जाएगी। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? अब भी समय है यीशु मसीह के आने के लिए, अभी भी समय है। जितने भी दिन या महीने लगेंगे पता नहीं, लेकिन अभी समय है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। ओके, पत्नी पति को क्षमा करे, पति पत्नी को क्षमा करे। कई सारे कलीसिया में, घरों में फूट होती है, कई सारे पति पत्नी के बीच में फूट होती है, कई सारे परिवार एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। हाँ, इन वचनों के अनुसार परमेश्वर ने तुम्हें और हमें एक दूसरे को आदर करने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए बुलाया, ताकि 22 वचन में अच्छा लिखा है, देह में फूट ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। आमेन। एक दूसरे की चिंता करें। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम एक देह बनकर जिए। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। इस उंगली को तकलीफ होती है, पूरे शरीर को तकलीफ होती है। हालेलुया। इस आंख को तकलीफ होती है तो पूरे शरीर को तकलीफ, एक कान को दर्द होता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है। वैसे ही प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने कलीसिया के लिए भी बुलाया है, कलीसिया के लोगों को भी बुलाया है कि हम एक दूसरे का बोझ उठाएं, हम एक दूसरे के दर्द में, परेशानी में उनके लिए प्रार्थना करें, उनके सुख दुख के साथी हो। सिर्फ सुख के साथी नहीं, दुख के भी साथी होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए क्षमा करो, एक दूसरे से मिलो, वो बातें करो, फोन से हाय हेलो करो। एटलीस्ट तुम्हारे हाय हेलो करने से तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बहन को सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, उसे अच्छा लगेगा, उसके दिल में तुम्हारे प्रति जगह तैयार हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ काम होने पर फोन मत करो किसी को, लेकिन ऐसे भी कभी महीने में, ज्यादा नहीं, महीने में एक बार किसी की पूछताछ करें। अब हम एक दूसरे से दूर है, हम एक दूसरे को मिल नहीं सकते हैं, ओके, इस कोरोना वायरस के वजह से, लेकिन एटलीस्ट हाय हेलो करने में कौन सा बड़ा पैसा जा, आजकल तो सब नेट पे फ्री तो चल रहा है, तो तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगता है ज्यादा, तो एक दूसरे को फोन आप करें, ताकि प्यारे भाई बहनों, छोटा सा परिवार है, सुखी परिवार हो जाए। और तुम्हारा प्रेम देखकर, ओके, ज्यादातर जो बहनें हैं, किसी के साथ, भाई तो बात करते हैं एक दूसरे से, बहनें तो किसी के बात बातें नहीं करते। इतने महीने हो गए किसी बहन ने खुद होकर कोई कभी बात नहीं की फोन पे। स्मिता को एक ने भी अभी तक फोन नहीं किया, स्मिता को, या फिर एक दूसरे को आप फोन नहीं करते हैं। फोन करो, क्या जाता है तुम्हारा फोन करने में? क्यों तुम इतने हटीले हैं? ये हटीलापन है, ये हटीलापन छोड़ दो। एटलीस्ट आप ये अभी वचन अगर आपके मन में घुसा है, आपको अगर ये समझा है कि नहीं, ये वचन के अनुसार हमें करना चाहिए, तो ये मेरा वचन नहीं, तुम्हारे मेरे प्रभु का वचन है, और उसके अनुसार हमें ये करना ही है। हालेलुया। महीने में ज्यादा नहीं, आपको बोझ ना दो, महीने में एक बार किसी एक भाई को, तो बहनें खास करके, बहनें किसी एक बहन को फोन करो ना, कैसी है तू, क्या कर रहे, क्या चल रहा है, कैसी है तबीयत, क्या प्रॉब्लम है, तो अच्छा लगता है। प्रार्थना एक दूसरे के लिए हो सकती है। प्यारे भाई और बहनों, अब समय बहुत बदल गया है और हमें समय के साथ हमें भी अपने आप को बदलना जरूरी है। हाँ, शैतान ने हमारी सहभागिता बंद कर दी, लेकिन बोलना चलना तो बंद नहीं किया ना। तो सहभागिता बंद कर दी, बोलना तो बंद नहीं किया ना। गूंगे तो नहीं हो गए हम लोग बोल सकते हैं ना, तो एटलीस्ट उतना तो करो, उतना तो करो, प्रभु को अच्छा लगेगा, सामने वालों को अच्छा लगेगा। आपका दुख एक अलग बात है, दुख
तकलीफ परेशान मुझे भी है, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो अब चाहता है कि अभी हमारे दिन खत्म हो गया तो अच्छा है। ऐसा लगता है कई बार, मनुष्य का हृदय होता है, लगता है निराशा आती है, नर्वसनेस आता है, वो अलग की बात है। लेकिन एटलीस्ट ये खुशी देने वाली बात है कि आप किसी को फोन करें, क्योंकि कोई बहन कोई भाई, तो एक फोन अगर आपका जाएगा तो प्यारे भाई और बहनों, एक उदाहरण को देता हूं। एक व्यक्ति सुसाइड करने पर था, एक भाई सुसाइड करने वाला था, और उसने सोचा था कि आज रात को मैं सुसाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले एक भाई ने उसको फोन किया, उसकी पूछताछ की और उसका हालचाल पूछा और प्रभु का वचन सुनाया। अरे भाई और बहनों, उसका हृदय बदल गया परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा ने उसको छू लिया और उसका सुसाइड करने का जो विचार था, आत्महत्या करने का विचार बदल गया और वो आत्महत्या करने से बच गया और उसका उद्धार हो गया। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, ये मुझे भी करना है, ये ना आपको सिर्फ नहीं, मुझे भी करना है, और मैंने अगर नहीं किया हो तो मुझे भी ये करने की जरूरत है। सो बाइबल कहती है कि एक अंग अगर दुख पाता है तो उसके साथ दूसरे अंग भी दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ज्यादातर क्या होता है, जलन होती है। ज्यादातर कलीसिया में क्या होता है, जलन होती है, जलसी। अरे उस भाई का अच्छा हो गया क्या, अरे उस बहन का अच्छा हो गया क्या, उसने नया कपड़ा खरीदा क्या, उसने नई साड़ी खरीदी, उसने नया घर खरीदा, उसने नई गाड़ी खरीदी। जलन होती है। लेकिन बाइबल कहती है जब किसी की बड़ाई होती है तो तुमको हमको आनंद होना चाहिए। हम छिपा के नहीं रखते हमारी आशीषों को। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आशीष मिलते हैं तो उस आशीष को बांटो। लेट पीपल एंजॉय विद द ब्लेसिंग्स, डोंट हाइड इट। बहुत सारे लोग हाइड करते हैं, छुपा के रखते हैं। नहीं, छुपा के मत रखो, उसको बांटो, क्योंकि तुम्हारे बढ़ोतरी में हमें खुशी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम्हारी बढ़ोतरी होती है तो मुझे खुशी होती है कि मेरे भाई को, मेरे बहन को प्रभु ने ऊंचा उठाया। हालेलुया। क्योंकि मुझे आनंद होगा, मेरे भाई बहन का ऊंचा होता है, तुम्हारा प्रमोशन होता है, तुम्हें तुम्हें प्रभु बहुत सारे आशीष देता है, हमें अच्छा लगता है। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि एक अंग की बढ़ाई होती है, उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे दुख में हम दुखित होते हैं, तो तुम्हारे सुख में भी हम सुख मनाएं। ओके। सो प्यारे भाई बहनों, यहाँ ये विषय जो है यहाँ मैं रुकता हूँ, अगले संडे कंटिन्यू करूंगा इस दूसरे एक वचन से, टैलेंट्स के बारे में। लेकिन ध्यान में रखना, अगर आपके वचन अच्छा लगा हो तो आप थोड़ा तो कुछ उसके ऊपर सोचो कि अब तुम्हारा पहले वाला जीवन जो था, अकेला जीना, अकेले अकेले चलते रहे, अकेले बहुत हो गया अकेला चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ना भले तुम दूर हो लेकिन एटलीस्ट फोन पर बात करो, फोन पर बात करो, महीने में एक बार। ओके, तो उतना तो करो, परमेश्वर जरूर तुम्हारी सहायता करेगा। एक सूचना है, क्रिसमस नजदीक आ रहा है और हमारा मिलना होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हम देखेंगे आने वाले दिन में क्या होता है, गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है कि नहीं देती है। लेकिन अगर परमिशन नहीं देती है तो क्या करेंगे, तो एक योजना, एक सिस्टर हमारी जो है ब्रदर राज की पत्नी ने एक योजना बनाई है रेजिना के द्वारा, कि माँ बाप अपने अपने बच्चों को कोई गाना सिखाए। ओके, वो गाना गाए, उस गाने का वीडियो हम बना सकते हैं, या फिर वचनों को जो हम लोग रिमेम्बर करते हैं, वचन कोई अध्याय वो लोग तैयार करें और उस अध्याय को पूरी तरह से वो लोग बाहट करके उसको रिकॉर्ड करके हम प्ले करेंगे। या फिर कोई अच्छे गाने पर एक डांस रहेगा, तुम्हारे बच्चे को अगर तुम डांस सिखा सकते हैं प्रभु के वचन पर, तो वो गाना लगाकर बच्चे नाचेंगे, उसका वीडियो बनाकर हम लोग भाई राज को भेजेंगे। और फिर क्रिसमस के दिन भले ऑनलाइन तो ऑनलाइन, लेकिन वो वीडियोस उस दिन प्ले कर दिए जाएंगे। ठीक है। सो इस तरीके से हम अपने बच्चों को, माँ बाप जिम्मेदारी ले ले
तुम्हें अगर कोई तकलीफ होती है, आइडिया चाहिए, तो आप सिस्टर से बात करो, रेजिना से बात करो। सोलो सॉन्ग या फिर तुम्हारे बच्चों का ग्रुप सॉन्ग या फिर वचनों को रिमेम्बर करना, या फिर कोई छोटा सा स्किट भी अगर तुम तैयार कर सकते हैं माँ बाप, तो वो भी आप तैयार करें। भाई जैकब के 3 लड़के हैं, बच्चे हैं, वो भी वहां से हमें भेज सकते हैं। भाई जैकब सुन रहे हैं ना? तो भाई जैकब सुन रहे हैं ना? भाई जैकब सुन रहे हैं? आपका ध्यान नहीं है। आपकी 3 बच्चे हैं, तो आप भी ऐसे वीडियो बना के भेज सकते हैं। और क्रिसमस को अगर हम साथ में नहीं मिल सके, तो हम ऑनलाइन ही उसको चला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इस तरीके से अगर कोई आइडिया चाहिए तो सिस्टर रेजिना से बात कर सकते हैं। शालिनी है, रेजिना है, और उनके साथ शायद महिमा वगैरह उनको सपोर्ट करने के लिए रह सकती है। तो घर पे जाना है डांस सिखाने के लिए या कुछ कार्यक्रम को तैयार करने के लिए, तो महिमा मदद करेगी। रायना है, रेजिना के जो बच्चे हैं वो भी है, तो मदद करेंगे जो नजदीक के लोग हैं। और इस तरीके से हम लोग उस काम को अंजाम देंगे। ठीक है? सो प्रार्थना करना ताकि अगले महीने में उसको हम रिकॉर्ड करके तैयार रखें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा और सम्मान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता आदर और महिमा सम्मान देते हैं। इस समय प्रभु जो तेरे भंडार में भेंट अर्पण करने का समय है, प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोगों को तूने आशीष दिया है, उन सबों को प्रभु परमेश्वर तू सहायता कर कि वे प्रभु तेरे भंडार में तेरे भेंट को अर्पण करे, और उनके देने के द्वारा प्रभु तेरी सेवकाई की जरूरत जो है वो पूरी हो सके। इनके काम धंधे पर तेरा आशीष मांगता हूँ। उनके नौकरियां, उनका काम धंधा तो आशीषित करना, उनका बाहर जाना अंदर आना तो आशीषित करना, और सारे परिवारों को सुरक्षित रखना, ऐसी प्रार्थना और विनती करता हूँ। अगले संडे फिर से हम एक साथ आएंगे, तब तक तू हमारी रक्षा करना, और शाम की भी प्रार्थना सभा को और प्रभु भोजन की विधि को तो आशीषित करना। और प्रभु जितने भी लोग आएंगे प्रभु भोजन के लिए, उस विधि में भाग लेने के लिए, उन सबको तो आशीष देना, और कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट न होने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सबको आशीष देता हूँ, और इनके पेट पर, इनके दानार्पण पर, इनके दान दशमांश पर भी तेरा आशीर्वाद मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। सब लोग कहे आमीन। ആത്മാവേ കർത്തരെ സ്തോത്രി, എന്നോടുള്ളമേ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ സ്തോത്രി. എൻ ആത്മാവേ കർത്തരെ സ്തോത്രി, കർത്തർ ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങളെയും മറവാതെ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Amen. Praise God. हालेलुया। आपका हालेलुया। जो ऑफरिंग है, ऑफरिंग बॉक्स में डाल के रखना, और ब्रदर राज को अपने अकाउंट में भेज देना, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you all. जय मसीह। Okay, thank you, and we'll see you next Sunday. And आज शाम को प्रभु भोजन है साथी कलीसिया में, आप अगर आ सकते हैं तो आ जाओ। Praise God. So प्रार्थना करना कि शाम की प्रार्थना सभा हमारे लिए आशीषित हो, और बहुत सारे लोग अभी आने लगे हैं। आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अभी आने लगे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। प्रार्थना करें कि हमें प्रभु सुरक्षित रखे। वहां अभी तक संभाला है, ये 6वां महीना, प्रभु हमें संभाले, ताकि आपकी प्रार्थना की जरूरत है। सो प्लीज रिमेंबर अस इन द प्रेयर। और कोई सूचना है? और कोई सूचना है ब्रदर? किसी को कुछ वो कहना है? एनीवन हैज समथिंग टू टेल? ओके।